દાદા પોતે જ કહે છે ને કે આ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે, અને મહાવીર ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન બધા સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્ટિસ્ટ થયેલા, અને એમણે જે જગતને આપ્યું એ સાયન્સ આપ્યું છે. ધર્મ અને સાયન્સમાં બહુ ડિફરન્સ છે. ધર્મ એટલે શું? ખરાબ છોડો, સારું પકડો, અશુભ છોડીને શુભમાં જવું, એને ધર્મ કહેવાય છે. જ્યારે આત્મસન્મુખ થવું અથવા તો તત્વદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી એને અધ્યાત્મ કહેવાય છે. એમ ધર્મ ગમે તેટલો કર્યો ને તોય છેવટે પુણ્ય બંધાય છે, અને પુણ્યનું ફળ સંસાર મળે છે, મોક્ષ થતો નથી. તત્વ વિજ્ઞાન જુદું જ છે આખું, એનાથી બહાર છે આખું. જ્યાં તત્વોનું એનાલિસિસ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ તત્વને ઓળખવાની જ વાત છે. એવું આત્મા પણ આ દેહમાં શુદ્ધ તત્વ સ્વરૂપે રહેલો છે, જળ પણ તત્વ સ્વરૂપે છે. અને તત્વો ભેગા થવાથી આ દેહ બન્યો, મન બન્યું, વાણી બની, આ વ્યવહાર બન્યો બધો. પતિ, પત્ની, મા બાપ, છોકરા, બધો વ્યવહાર બની ગયો. આ બધા વ્યવહારમાં મૂળ તત્વ શુદ્ધ હતું, છે અને રહેલું જ છે. હવે બોલો, જ્યારે એ દ્રષ્ટિ મળે છે ને ત્યારે આપણને લાગે છે કે આ વ્યવહારમાં ગૂંચવાડો રહ્યો જ ક્યાં પછી? તો આ એ જ પકડવાનું છે. દાદા કહે છે અમને ના પકડશો, અમારા વિજ્ઞાનને પકડો. આજે કોમ્પ્યુટર કોણે બનાવ્યું એ સાયન્ટિસ્ટને આપણે પૂજા કરીએ છીએ, એના પાઠ મંત્ર જાપ કરીએ છીએ, સાયન્સનો લાભ લઈએ છીએ. અને અમે એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે આ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સનો લાભ લો. તો આપણી પાસે દીવો છે, કોડિયું છે, વાટ છે, ઘી પૂરેલું છે, પ્રગટ દીવાને અડાડવાની જરૂર છે. અમારી પાસે દાદા ભગવાનની કૃપાથી મારો દીવો સળગ્યો, મારી પાસે તમારોય સળગી શકે એવું છે. અને આપણા ઘરમાં જો અજવાળું થયું, અજવાળું એનું નામ કહેવાય કે તમામ અથડામણ ડખોલોથી મુક્તિ થાય. એક વખત અજવાળું કરાવી લેવાની જરૂર છે, અને સહેજે થાય એવું છે. 2 જ કલાક જિંદગીના જો કાઢ્યા અને જો દુઃખોથી મુક્તિ થતી હોય તો કોણ ચૂકે આવું સરસ. અને તમે પોતે જ અનુભવ કરવાનો છે. આ કંઈ અમે શિષ્ય બનાવવા માગતા નથી, કે અમે કહીને કે અમારું ગુરુપદે સ્થાપન કરવા માગતા નથી. અમને જે સુખ મળ્યું, તમામ દુઃખોથી મુક્તિ, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મને દુઃખ થઈ શકતું નથી, તો પછી એવું સુખ તમે પ્રાપ્ત કેમ ના કરી શકો 2 જ કલાકમાં? તમને એમ લાગશે કે હો, આ પ્રાપ્ત થયા પછી મને એ જ વસ્તુ મળી જે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આપી હતી, મહાવીર ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને આપી હતી, રામચંદ્રજીને વશિષ્ઠ મુનિ પાસેથી મળી હતી. જીવ શિવનો ભેદ મટી ગયો, એ આપણને પોતાને જ અનુભવમાં આવશે. ત્યારે આપણને લાગશે કે મેં કોઈ ધર્મ બદલ્યો નથી, મેં કંઈ સંપ્રદાય છોડ્યો નથી, કે મેં કંઈ ગુરુએ છોડ્યા નથી, મારા પોતાના જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર હું પામી શક્યો. તો અહીં તમને શોર્ટકટ, સહેલો રસ્તો અને ઇઝી અને જીવન વ્યવહારમાં એપ્લિકેબલ, મોસ્ટ એપ્લાઇડ, મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ રસ્તો આપી દઈએ છીએ. અને એ રસ્તો પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે જાતે જ અનુભવશો કે મારો ધર્મ, મારા ગુરુ, મારું જીવન ક્યાંય હું ફેરફાર કરતો નથી, ફક્ત મારી દ્રષ્ટિ બદલાય છે અને દુઃખોથી હું મુક્તિ પામું છું. લાખો લોકોએ આ સુખનો અનુભવ કર્યો છે. આપણે શું કામ વંચિત રહેવું જોઈએ? आनंद है, आनंद है, आनंद है. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. मेरा नाम अभिमन्यु है. मैं आप ही में से एक हूँ. लाइफ, जीवन, जिंदगी ये एक यात्रा है और हर कोई इस यात्रा में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हर यात्रा का एक शुरुआत और एक अंत होता है. इस यात्रा में हमें कैसे चलना है, कहाँ पहुँचना है, हमारी मंजिल क्या है, ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में उठा करते थे. सब के सब मूव कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसका उद्देश्य नहीं पता. तो मैं सोचता था कि ऐसा कुछ मिले जो जिससे मुझे एक सुकून सी मिले. बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर एक सुकून सा रहे इंटरनल. किताबें और पूजा करना ये सब बहुत चलता था, लेकिन वो जो एक चीज़ खोज थी ना, वो कंप्लीट नहीं होती थी. ऐसा लगता कि मुझे कुछ और चाहिए. सबसे यूनिक बात यह है कि हर उम्र, धर्म, हर जाति के अनपढ़, पढ़े लिखे सभी तरह के लोगों को अपने सवाल के समाधान मिलते हैं. मेरे 2 सवाल थे. एक थोड़ा फनी वे में है, तो पहले वो पूछूं या सीरियस वाला पूछूं? जो भी पूछना है पूछो. अभी सब इधर आनंद करने का है, दुखी होने के लिए पूछने का नहीं है, दुख मिटाने के लिए पूछने का है. दीपक भाई, मैं मेरे भाई से बहुत झगड़ा करती हूँ, इसीलिए क्या करूँ? माफ़ी मांग लेने की और निश्चय करने का, ऐसा झगड़ा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा निश्चय करने का. हमारे जीवन में अब तक जब हमें नॉलेज आती है, हम लोग कुछ ना कुछ गलत काम तो हमसे होते ही हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हमारी रहती हैं पास्ट की, लेकिन अगर हमें उनको ओवरकम करना है ताकि
आज जहाँ हैं हम और आगे जब बढ़े तो वो चीज़ हमारे साथ ना रहे, अब उनसे हम कैसे ओवरकम करें? खुद के दोष जब दिखेंगे तब हम वो दोष से छुटकारा पा सकेंगे। तो ये ज्ञान की दृष्टि से वही शुरुआत होती है। खुद के दोष खुद देखना शुरू करता है, सामने वाले को निर्दोष देखने की शुरुआत होती है। बाद में खुद के दोष के आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान, यानी दिल से पश्चाताप लेते जाते, एक एक दोष कम होते जाते, हम दोषों से मुक्त होते जाते, हमें अनुभव होगा बाद में। संसार में इतने भ्रष्टाचार, अनैतिकता है, इसका ये अगर दूर हो जाए तो मतलब विश्व कल्याण हो सकता है। तो ये कैसे हो? वही रास्ता है यहाँ तो, मगर हम सारे संसार को सुधारने नहीं जाते। हमारे पास जो आए, नहीं आप बोलते मेरे पड़ोसी से मेरा बहुत झगड़ा होते रहता था और अभी बहुत कम हो गया, लगभग खत्म हो गया, तो हम 1 to 1 को सुधारने की भावना रखते हैं। आप सुधरे तो आपके तो आसपास पड़ोसी तो शांति हो गई उनको, और एक को देख के दूसरा सुधरेगा, 2 को देख के 100 सुधरेंगे, 100 को देखे, ये 1 to 1 सुधरने का रास्ता है। ज्ञान विधि क्या है, आइए समझते हैं। ये अज्ञानता से अंधेरे में कितनी ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, लग जाती है चोट। तो प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान यानी प्रकाश। प्रकाश से क्या, हम ठोकर बंद हो जाएगी, मतभेद बंद हो जाएंगे, दुख देने का बंद होएगा, दुख भुगतने का बंद हो जाएगा। तो प्रकाश की जरूरत तो है कि नहीं हमें? ये संसारी ज्ञान है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब संसारी ज्ञान है। वो रिलेटिव ज्ञान बोला जाता है। इंजीनियर कितना भी एक्सपर्ट होगा मगर बोल्ट पाना सब नहीं है तो कुछ नहीं कर सकेगा। साधन के आधार से रिलेटिव ज्ञान है, और आत्मा का रियल ज्ञान है। अपनी जागृति में रहेंगे तो दुख देह से, दुखों से मुक्ति निरंतर रह सकती है। और सबसे तमाम दुखों से मुक्ति पानी वही मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो ज्ञान प्रकाश से दुखों से मुक्ति हमें मिल जाएगी। याद रखना, इस समझ से सिर्फ हमारी दृष्टि बदलेगी, पूरी दुनिया नहीं। ज्ञान से मुझे जो मेरी ज़िंदगी जो है सरल हो गई। मैंने हर चीज़ को डील करने का एक व्यवहार आ गया, और मुझे एक मंजिल सा मिलने लगा कि अब इसके बाद मैं एक मंजिल पे पहुंच सकता हूँ। इट इज़ लाइक अ गाइड, इट्स लाइक अ परमानेंट फ्रेंड टू यू, अ परमानेंट गाइड टू यू, अ परमानेंट काउंसलर टू यू। खुद का पता भूला था मैं, अब घर मेरे लौटा हूँ मैं। मंजिल की थी नहीं खबर, अब मिल गया मुझे राहबर। और ऐसे लगता है कि बस अभी एक डायरेक्शन मिल गया मुझे, अब मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि इतने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले पूज्य दीपक भाई कौन है। आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई, जो पूज्य निरुमा के सहाध्यायी हैं, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था ज्ञानी पुरुष परम पूज्य दादा भगवान से। दादा भगवान के नाम से प्रख्यात श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल का जन्म 1908 में गुजरात में हुआ था। बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रखने वाले श्री अंबालाल जी पैसे से कॉन्ट्रैक्टर थे। सन 1958 में उन्हें आत्मज्ञान हुआ और सभी आध्यात्मिक और सांसारिक गुत्थियों के हल मिल गए। सभी दुखों से मुक्त होने का मार्ग मिल गया। अपनी ज्ञान सिद्धि द्वारा वे यही ज्ञान हजारों लोगों को दे सके और वही कहलाया अक्रम विज्ञान। सन 1968 में पूज्य निरुमा को और 1971 में पूज्य दीपक भाई को दादाश्री से इसी ज्ञान की प्राप्ति हुई। दादाश्री के निश्रा में समर्पित पूज्य निरुमा और पूज्य दीपक भाई ने ज्ञान की गहराइयों को समझकर आत्मसात किया और दादाश्री के कृपा पात्र बने। सन 1988 में पूज्य दादाश्री का देह विलय हुआ और उसके पश्चात पूज्य निरुमा और पूज्य दीपक भाई ने देश विदेश में अनेक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया। हमें कल ज्ञान लेना है तो हमें कल हमारे साथ क्या लाना है, पैसा वगैरह कहाँ देना पड़ेगा। ऐसा है, सच्चा ज्ञान अमूल्य होता है। अमूल्य की क्या कीमत दोगे, जिसकी कोई मोल ही नहीं है। इसीलिए लेना देना बंद रखा है।
अमूल्य आप दे नहीं सकोगे और अमूल्य हम ले भी नहीं सकेंगे। लेना देना बंद है, सिर्फ अपने साथ भाव लेके आओ कि मैं किस तरह से ये ज्ञान प्राप्त करूं और मोक्ष में जल्दी पहुंच जाओ। सारे कर्मों को ख़त्म करो, कोई प्री कंडीशन माइंड मत ले आओ। जो भी मिलेगा मेरे आत्मा का ही होगा और इससे ही मेरा उद्धार है, उसी में मुझे रहना है। जीने की सही समझ पाकर निरंतर आनंद में रहने का ये ज्ञान पूज्य दीपक भाई आज भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया में सभी को अक्रम विज्ञान की प्राप्ति हो, इसी भावना से गुजरात में मुख्य सेंटर अडालज और विश्व भर में दादा भगवान परिवार के हजारों सेवार्थी कार्यरत हैं। आप अधिक जानकारी www.dadabhagwan.org वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्ञान मैंने पाया, बहुत सारों ने पाया और आप भी पाएं।